برآمدی صنعت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زیرو ریٹڈ 5 برآمدی شعبوں اور تمام برآمد کنندگان کو ضروریات پوری کرنے کے لیے خام مال، پرزے اور دیگر اشیاء کی درآمد کے لیے مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار۔ دو ٹوک اور بار بار کی تردید کے باوجود وزراء اور مشیروں کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی جعلی اور من گھڑت خبریں پھیلانے پر حکومت کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ افواہوں کو خبریں بنا کر پیش نہ کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس آج سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی درپیش چیلنجز کے تناظر میں معاشی اور سماجی اثرات اور علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام موصول۔ نام اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بھیج رہا ہوں۔ خواہش ہے کہ دونوں لیڈرز مقررہ وقت پر کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان۔ ناصر کھوسہ کی قابلیت، اصول پسندی اور دیانتداری مسلمہ ہے۔ ان سے رابطہ کیا گیا کہ فری کین کی طرف سے متفقہ نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کریں، تاہم ناصر کھوسہ نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور معذرت کر لی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹویٹ۔ 4 سالوں کی تباہی چند مہینوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کی ناقص پالیسی سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوا۔ اسمبلی تحلیل کرنے والے عوام کو جواب دہ ہوں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے بات چیت۔ ممتاز وکیل اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف آفریدی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق، ملزم گرفتار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عبداللطیف آفریدی کے قتل کی شدید مذمت۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کرنے والوں کو قانون کے مطابق عبرتناک سزا دلوائے۔ وزیر اعظم۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی عوام کی طرف سے اعتماد کا اظہار ہے۔ تحریک انصاف کے نام نہاد بیانیے کو عوام نے ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ کرونا وبا ہو یا سیلاب، ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان۔ نئے سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 4 کروڑ 42 لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف۔ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بچوں کو مستقل معذوری سے بچانا ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ اور بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدید لہر، کہیں برفانی ہواؤں کے تھپیڑے تو کہیں دھند کا راج۔ کالام میں درجہ حرارت -15، لے -14، ستور -10، کردو کلا زیارت -9 تک گر گیا۔ میدانی علاقوں میں بھی کوہر نے پانی جما دیا۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیوز شو 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی، تفصیلات اس بریک کے بعد۔ صاف رہیے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، دل و جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں۔
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की बुनियादी पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस में चौधरी परवेज इलाही की बुनियादी पार्टी रुकनियत को मुअत्तल करने के साथ साथ 7 रोज के अंदर उनसे जवाब जमा करवाने के लिए भी कहा गया है। नोटिस में चौधरी परवेज इलाही से गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम की वजाहत भी तलब की गई है। हमारी नुमाइंदा फरहाना खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी फरहाना, आगाह कीजिएगा। जी, इस हवाले से मैं ये बताती चलूं कि रात से कुछ खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसको तहरीक इंसाफ में जिम किया जा रहा है। तो चौधरी परवेज इलाही और इस पार्टी के हवाले से जो खबरें गर्दिश में थी, तो इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के जो मरकजी सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने इसका नोटिस लिया है। न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन्होंने हंगामी तौर पर एक इजलास तलब किया जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा थे। तारिक बशीर चीमा ने शिरकत की, चौधरी सालिक हुसैन थे, चौधरी शाफी हुसैन थे। उन्होंने इस बात का नोटिस लिया कि ये इकदाम किस तरह से किया जा सकता है, कैसे सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जिम कर सकते हैं, और इस गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम की उनसे वजाहत मांगी गई है। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अपनी एक जो सियासी जमात के तौर पर शनाख्त है, उनका एक तशख़्ख़ुस है, अवाम में उनकी एक साख है, अपना वोट बैंक है, पार्टी का अपना डिसिप्लिन है और पार्टी का अपना कोई मंशूर और ज़ाब्ता है। तो इस हवाले से जो खबरें गर्दिश करती रही, तो इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के हवाले से इस बात का इनको नोटिस दिया गया है। उनकी पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल की गई है और इस बात की वजाहत मांगी गई है कि किस तरह उन्होंने इस इक़दाम को किया है। तो 7 दिन का इनको मौका दिया गया है। 7 दिन के अंदर अंदर इनको अपने इस इक़दाम की वजाहत करना होगी, वरना पार्टी आइन के आर्टिकल 16 और आर्टिकल 50 के तहत कार्रवाई अमल में ला सकती है। फरहाना खान, ये कार्रवाई क्या हो सकती है? फिलवक्त तो बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल की गई है, क्या अगर इसके बावजूद जवाब नहीं आता, जो कि हम देखते रहे पहले भी ये सिलसिला जारी रहा, मुख्तलिफ मौके पर अगर कुछ खबर आती रही कि कहीं इजलास हो रहा है पंजाब मुस्लिम लीग काफ का और उसमें चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से हटाने के लिए बात हो रही है, और आज अगर बात हो रही है चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, तो बात अगर वजाहत नहीं पेश की जाती तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? कार्रवाई के हवाले से तो जो मरकजी सदर हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं। ज़ाहिर हर पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन होता है और वो फैसला करते हैं कि किस तरह से अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जाए या पार्टी के जो ज़ाब्ता हयात जो ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको कोई वायलेट करे तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। लेकिन सरेदस्त सबसे पहले उनकी रुकनियत मुअत्तल की जाती है, और वो भी रुकनियत मुअत्तल उस वक्त तक रहेगी जब तक उन्होंने अपना जो अमल उन्होंने किया है उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो 7 दिन के अंदर अगर वो जवाब दे देते हैं, हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही ये कहें कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई इकदाम उन्होंने नहीं किया, या मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो ये कहना अभी कुछ कबल अज वक्त होगा कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरेदस्त खबर यही है कि उन्होंने उनकी रुकनियत मुअत्तल की है ताकि वो 7 दिन के अंदर अपना भरपूर जवाब तैयार कर सकें और ये बता सकें कि उन्होंने किस तरह से ये इकदाम किया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फरहाना खान, आपने डिटेल से हमें आगाह किया। पीटीआई और काफ लीग के जम होने के हवाले से कल रात से खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी का इजलास तलब किया और इस बात का नोटिस लिया गया और अब पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज इलाही से जवाब मांगा गया है, उनको नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर इस हवाले से वो अपना जवाब जमा करवा दें। न्यूज़ शो में आपको आगाह करें, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि बरामदी सनद हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 0 रेटेड 5 बरामदी शोबों और तमाम बरामद कुनंदगान को उनकी बरामदात की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाम माल, पुर्जे और दीगर अशिया की दरामद के लिए मुकम्मल सहूलत फ़राहम की जाएगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हमने फैसला कर लिया है। एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़रा और मशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मन घड़त खबरें फैलाई गई। 2 टोक और बार बार की तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने पर कानूनी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि मीडिया से दरख्वास्त है कि अफवाहों को खबरें बनाकर पेश न करें।
اور ناظرین سال 2023 کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑا عالمی فورم ہے، اقتصادی فورم بھی ہے۔ اس میں ناظرین دنیا بھر سے نہ صرف سربراہان مملکت و حکومت شرکت کرتے ہیں بلکہ اس میں سماجی شعبے سے وابستہ افراد اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری کمپنیز، ادارے اور افراد بھی شرکت کرتے ہیں۔ میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کی۔ سالانہ اجلاس آج سے سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ڈیووس میں شروع ہو رہا ہے۔ جی ہاں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی ان کے ہمراہ ہوں گی، اور وزیر خارجہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حقائق کے تناظر میں معاشی اور سماجی اثرات اور علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری موسمیاتی تبدیلی، خوراک اور توانائی کے تحفظ، مہنگائی کے اس دور میں سماجی خدشات اور سست رو معاشی سرگرمیوں کے مسائل پر بھی ترقی پذیر کے دنیا کے جو مسائل ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین، جن میں سیاسی رہنما بھی شامل ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، عالمی اداروں کے سربراہ ہیں، میڈیا بھی ہے اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور عالمی تناظر میں جو حالات و واقعات اس وقت درپیش ہے، جس میں خوراک کا مسئلہ ہے، توانائی کے تحفظ کی بات ہے اور جو انفلیشن ہے اوورال پوری دنیا میں، اس حوالے سے خاص طور ترقی پذیر ممالک جن مشکلات کا شکار ہیں، جن پریشانیوں سے ان کو واسطہ پڑ رہا ہے، اس حوالے سے وہ اپنا موقف اور پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو درپیش چیلنجز ہیں پوری دنیا کو، اس میں جغرافیائی سیاسی حقائق ہیں، معاشی اور سماجی اثرات اس حوالے سے کیا پڑ رہے ہیں، علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق پاکستان اپنا کیا موقف رکھتا ہے، یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے رکھیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین، جن میں سیاسی رہنما شامل ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، عالمی اداروں کے سربراہ بھی شامل ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ بالکل، آگے چلتے ہیں ناظرین۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان کہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی طرف سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے سردار احمد نواز سکھیرا، ناصر محمود کھوسا اور محمد نصیر خان کے نام موصول ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو بھیج رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ دونوں لیڈرز مقررہ وقت پر کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے نامزدگی کے حوالے سے 3 نام گورنر کو موصول ہوئے ہیں جو کہ قائد حزب اختلاف کو بھیجے جا رہے ہیں، اور کسی بھی ایک شخصیت پر اتفاق ہوتا ہے تو انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ناصر کھوسا کی قابلیت، اصول پسندی اور دیانتداری مسلمہ ہے اور بحیثیت بیوروکریٹ ان کا کردار قابل فخر ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ناصر کھوسا سے رابطہ کیا ہے کہ فریقین کی طرف سے متفقہ نگراں وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کریں، تاہم انہوں نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور معذرت کی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ 4 سالوں کی تباہی صرف چند ماہ میں ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی جی آئی کی ناقص پالیسی سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوا ہے۔ اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج نیب یہ کرنے سے قاصر کیوں ہے۔ اگر آپ نے غلط ریفرنس بنائے ہیں، سیاسی دباؤ میں بنائے ہیں، سیاست کو توڑنے اور مروڑنے کے لیے بنائے ہیں، اپوزیشن کو ملک میں دبانے کے لیے بنائے تھے، تو آج ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو عدالتوں میں موجود ہے۔ آج نیب خود کہتا ہے کہ کرپشن کا چارج نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ تو یہ وہی اتھارٹی ہے جو پرائم منسٹر کے پاس، جس کے بعد میں بھی پی ایس او کے چیئرمین لگے ہیں، اسی اتھارٹی کے تحت کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو ملک کو نقصان دینے کی بات ہوئی ہے کہ جناب تنخواہ زیادہ تھی جو پی ایس او کے چیئرمین لگے ہیں، تو جو اس کے بعد پی ایس او کے چیئرمین لگے ہیں وہ دگنی اور تگنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی اس معاملے کی حقیقت ہے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ आपको आगाह करें, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि चीन ने खित्ते की तरक्की के लिए CPEC जैसा गेम चेंजर मंसूबा दिया, लेकिन इमरान खान ने बैरूनी एजेंडे के तहत CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पेशावर में वुकला कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि दूसरों को चोर चोर कहने से अपनी चोरियां नहीं छुपती। इमरान खान दूसरों पर इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। क्या सियासत सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए चालाकियों और होशियारियों का नाम है? आज जो ये तड़प रहे हैं, इस तड़प के पीछे असल वजह यह है कि वो अपना एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सकते। हमने बीच रास्ते से उनको मुल्क को छुड़ा दिया उनसे, और फिर एक कागज लहराया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। वो कोई साजिश नहीं हुई। हम ऐलान करते हैं कि हमने तुम्हें गिराया है, तुम मुंतखब थे ही नहीं, तुम धांधली के जरिए आए थे, चोर दरवाजे से आए थे। दूसरों को चोर चोर कहने से अपनी चोरी नहीं छुपती। 3-3.5 साल में तुम्हारी अपनी कारकर्दगी क्या है? मुल्क की मईशत को जमीन बोस कर दिया इन लोगों ने। हमें रियासत मदीना बताते हो, और तुम्हारी अखलाकी गिरावट की कहानी कोई शरीफ आदमी किसी मजलिस में बयान नहीं कर सकता। सेनेट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 और अरकान पार्लियामेंट मुस्तस्नियात और इस्तेहकाकात तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिए हैं। इजलास की तफसील जानेंगे मलिक उमर से। जी मलिक उमर, आगाह कीजिएगा, इजलास में आज जो बिल पेश किए गए हैं उनकी तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी, आज सेनेट के इजलास में दो बहुत अहम बिल जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। सेनेट के इसमें सबसे पहला बिल जो है वो सेनेट के अरकान जो पार्लियामेंट हैं वो मुस्तस्नात और इस्तेहकाकात के लिए जो कानून वज़ा करने का बिल था वो मंजूर किया गया है। बिल जो है वो सेनेटर रज़ा रवानी की जानिब से पेश किया गया है। अहम फीचर्स इसके मैं बताता चलूँ कि अगर पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया गया हो तो किसी रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये इस बिल में नई एक अमेंडमेंट की गई है, जबकि 24 घंटों के अंदर अंदर अगर गिरफ्तारी के बाद जो है FIR करना और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं या चेयरमैन सेनेट हैं उनको आगाह करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और एतबात के वोट के लिए या बजट की मंजूरी के लिए जो बुलवाए गए असम्बली के जो इजलास हैं उनसे एक हफ्ता कबल किसी रुकन को गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सकता। बिल जो है यूनानिमसली जो है वो मंजूर किया गया है। इसके अलावा एक और अहम बिल जो है आज सेनेट के अंदर जो है वो मंजूर हुआ। ये बिल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2021 में तरमीम का जो बिल है वो मंजूर किया गया। जो बिल है वो अपोजिशन के सेनेटर मोहसन अजीज़ की जानिब से पेश किया गया था। बिल का मकसद ये है कि बिल में जो कमर्शियल बैंकों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो सनती और कमर्शियल कर्जे हैं उनमें इजाफे का कहा गया है। बिल को गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो अपोज किया गया था। वज़ीर मुमलिकत जो खजाना है आयशा गौस पाशा, उनका ये मौक़िफ़ था कि इस हवाले से कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है, तो इसको पॉलिसी के ज़रिए मुश्तरका तौर पे एक पॉलिसी वज़ा कर ली जाए जिसके अंदर इस मामले को निपटा दिया जाए। ताहम इत्तफ़ाक़ राय ना होने के बाद राय शुमारी की गई और अपोजिशन की जानिब से 26 सरकार ने बिल के हक़ में वोट दिया और हुकूमत की जानिब से 20 सरकार ने जो है बिल की मुखालफत की थी। तो इस तरह ये बिल जो है सेनेट से मंजूर हो गया। इसके अलावा आज के इजलास में मुख्तलिफ करारदादें भी जो हैं वो मंजूर की गई हैं। इनमें एक अहम करारदाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से है कि नौजवानों में जो इस हवाले से स्कूलों, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी की सतह पे भी एक बाकायदा मजमून के ज़रिए सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं से उनको रूशनास करवाया जाए और एक गहरा मुताला जो है वो उनका होना चाहिए सीरत तैयबा का, ताकि मुआशरे के अंदर जो इखलाकी मसाइल हैं और दूसरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे हम जो हैं वो निजात पा सकें। इसके अलावा एक करारदाद और भी जो है सेनेट में मंजूर की गई है। ये करारदाद जो है मारूफ कानूनदान क्यों होती है, ये तो नहीं होनी चाहिए। डिटेल हर जगह मिलेगी। आई एम एड्रेसिंग द चेयर, नॉट यू। थैंक यू वेरी मच। आई अगेन पुट ऑन रिकॉर्ड दैट द फॉरेन मिनिस्टर pays for his own trips. Honorable Leader. सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेटर सारिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। वफाकी वज़ीर मौसमी तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान सवालात के जवाब दे रही हैं।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मुमताज़ कानूनदान और साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ आफरीदी पेशावर में कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। उन्हें पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स अदनान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की नमाज जनाजा कल दिन 11 बजे पेशावर में अदा की जाएगी। उनकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं पेशावर से कश्मीर खान आफरीदी की रिपोर्ट। 1943 में कबायली इलाके जिला खैबर में पैदा होने वाले अब्दुल लतीफ़ आफरीदी 60 की दहाई में पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद वकालत के पेशे से वाबस्ता हुए। लाला के नाम से मारूफ अब्दुल लतीफ़ आफरीदी तरक्की पसंद ख्यालात के हामिल थे और वकालत के पेशे के साथ साथ अमली सियासत में भी काफी मुतहरिक रहे। ज़माना तालिब इल्म से ही वो जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के शाना बशाना सरगर्म अमल रहे। उन्होंने साबिक़ा फाटा में अंग्रेज दौर के खारे कानून FCR के खात्मे और कबायली इलाकों के मसाइल उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। 1997 में जब कबायली अवाम को पहली बार बालिग राहदही का हक मिला तो अवाम ने लतीफ़ लाला पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें रुकने कौमी असम्बली मुंतखब किया। उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी कबायली अवाम के मसाइल उजागर किए। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने 2007 की अदलिया बहाली तहरीक में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पेशावर में एक रैली की क़यादत करते हुए जख्मी हुए थे। सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने। इससे पहले वो मुतादिद बार पेशावर हाई कोर्ट बार के सदर रहे। कश्मीर खान आफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दी करने वालों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलवाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अब्दुल लतीफ़ आफरीदी का बहिमान कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने तमाम उम्र आइन की सरबलंदी, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। वो एक आला कानूनदान और बहादुर सियासी रहनुमा थे। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत पर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। वो हक की बात डंके की चोट पर करते और नताइज की परवाह नहीं करते थे। अफसोस, आज आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की एक तवाना आवाज़ खामोश हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की सियासी, कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस लर्ज़ा खेज़ कत्ल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अपने बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत का शिकार है। अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के हवाले से। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज के आमद का सिलसिला जारी है। कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला में इंतखाबात हुए जिनके नताइज आ रहे हैं। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब अली शाह कराची से, सबसे पहले उनसे जानते हैं। नवाब अली शाह, आगाह कीजिएगा, नताइज मौसूल हो रहे हैं, अब तक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। कराची की 235 यूनियन काउंसिल्स में से अब तक जो है वो 123 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जो हैं वो ऑफिशियल तरीके से हमारे पास मौसूल हो गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 58 यूनियन काउंसिल्स जीती हैं, जमात इस्लामी ने 31, PTI ने 26, मुस्लिम लीग नून ने 4, JUI ने 1, TLP ने 1 और आज़ाद उम्मीदवार जो है उसने भी 1 नशस्त जो है वो जीती है। अभी 112 यूनियन काउंसिल्स का नतीजा आना जो है वो बाकी है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विन विन सिचुएशन है और उन्होंने अब तक जो है वो 58 यूनियन काउंसिल्स पे उनके उम्मीदवार ने जो है वो फतह हासिल की है। और कहा यह जा रहा है कि कराची का मेयर जो है वो अब सूरत हाल इस तरह की बनती जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही होगा। जी अच्छा, नवाब अली शाह, हम देख रहे हैं कि बहुत सुस्त रवि का शिकार है, नताइज आ रहे हैं यूनियन काउंसिल्स में, इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स नहीं होते यूनियन काउंसिल्स में, टर्नआउट कैसा रहा ये भी बताइएगा। और दूसरा, नताइज के सुस्त रवि से आमद के हवाले से इंतजामिया का कहना है, ज़िला इंतजामिया ये दावा कर रही है कि कहीं नताइज अगर स्लो हैं, उनकी आमद अगर सुस्त है तो लोकल बॉडीज़ में ऐसा ही होता है। जी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला सिंध से हमारी बात हुई इस सिलसिले में।
एक तकरीब में उन्होंने ये कहा था कि रिज़ल्ट्स जो देर आ रहे हैं इसमें एक तो सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने कहा हम राब्ते में भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा मैनुअल तरीके से जो हैं वो रिज़ल्ट्स देना शुरू किए हैं, और इससे पहले 2018 के इलेक्शन जो थे उसमें डिजिटल तरीके से थे, लेकिन अब क्योंकि एक सिस्टम ऐसा तय किया गया है इदारे की जानिब से कि जो है वो रिज़ल्ट्स मैनुअल तरीके से बनाए जा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए जा रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस के बाद जो है वो उसको अनाउंस करता है। जहां तक आपने बात की टर्न आउट की, तो टर्न आउट काफ़ी बेहतर रहा। टर्न आउट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मिसाल के तौर पे एक सियासी पार्टी की जो है वो बाइकाट की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बहरहाल कराची की बहुत सारे इलाकों में अच्छा टर्न आउट कहा गया है। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त पूरा टर्न आउट इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी 112 यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट्स आना अभी बाकी है, लेकिन ओवरऑल ये ज़रूर कहा जा सकता है, हमने क्योंकि बहुत सारे यूनियन काउंसिल्स की इलेक्शंस जो हैं वो विजिट्स भी की, पोलिंग स्टेशंस भी देखा, तो लोगों का हमें रश नज़र आया। हमारे कैमरे ने भी दिखाया, बहुत सारे और टीवी चैनल्स में भी आपने देखा कि लोगों का, क्योंकि कल इतवार था तो जो सेकंड हाफ था उसमें बहुत सारा रश था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे, तो लोग थे, लोग निकले, लोगों ने वोट डाला और लोगों की दिलचस्पी भी इलेक्शन में रही। सो ये है जी। बहुत शुक्रिया नवाब अली शाह, कराची से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। उनके मुताबिक 123 यूनियन काउंसिल्स के नतीजे आ चुके हैं, 112 का नतीजा अभी आना बाकी है, लेकिन जो सारी सिचुएशन है उससे पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद डिवीजन के अजला और इसके साथ साथ दीगर मुल्का इलाकों में क्या सूरत हाल रही बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए हैदराबाद डिवीजन में भी पोलिंग हुई। शिराज अली डाहरी हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। शिराज, आपसे जानना चाहेंगे कितने नताइज मौसूल हो चुके हैं अभी तक और कितने फीसद नताइज आना अभी बाकी है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो दूसरे फेज के इंतखाबात थे बल्दियाती, उनके रिजल्ट्स तो अभी तक आ गए हैं। तकरीबन 30 से 35% जो हैं वो रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुकी है इन तमाम अजला में। जो 9 अजला थे उनमें 950 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो कामयाब पाए हैं। गैर हतमी जो नताइज आए हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज हैं उनके मुताबिक। जबकि दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने तकरीबन जो है 110 सीट्स हासिल की हैं। जमात इस्लामी ने 69, इंडिपेंडेंट भी बड़ी तादाद में इन 9 अजला से सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें 70 सीटें उनकी शामिल है। JUI फंक्शनल की 11, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो बराह रास्त जो हैं वो जो नताइज अभी तक आए हैं गैर हतमी उसमें कामयाब करार पाए हैं। ओवरऑल सिचुएशन में आपको बताऊं कि नताइज का सिलसिला अभी तक जारी है। हम DRO's ऑफिस से मुसलसल राब्ते में हैं और जब वहाँ से हमें जितने रिजल्ट्स का हमें पता लग रहा है वो जो, क्योंकि अब जो है तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी किया है कि रात तक जो हैं तकरीबन सारे जो हैं जितने भी हल्के हैं वहाँ से रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो जाएंगे। अगर मैं खुसूसन सिर्फ ज़िला हैदराबाद की बात करूं तो ज़िला हैदराबाद के भी मेयर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत पोजीशन में है और यहाँ भी 160 में से जो है 68 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैदराबाद में है वो सीटें ले गई है, कामयाब हो गई है। जबकि 25 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 जमात इस्लामी, 5 आज़ाद उम्मीदवार भी जो है ज़िला हैदराबाद में वो कामयाब पाए हैं। तो यहाँ भी जो हैदराबाद में मेयर की जो पोजीशन वो पीपल्स पार्टी की खासी मजबूत नजर आ रही है। इसी तरह जो दूसरे अजला हैं, दादू, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार, मटियारी, जामशोरो, कदीम, सजावल, ठट्टा, इन तमाम में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाबी पा चुकी है। और अब सिर्फ जो है ऑफिशियली तौर पे अनाउंस होना है। काफ़ी जो है यूनियन कमेटीज़ के जो हैं बिला मुकाबला भी पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए थे, करार पाए थे, लेकिन मेयर की पोजीशन में हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी ही है। जी बहुत शुक्रिया। शिराज अली डाहरी हैदराबाद से हमें नताइज से आगाह कर रहे थे। उनके मुताबिक 35% जो नताइज हैं वो आ चुके हैं और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बरतरी जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। माहौलियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इंतखाबात में अक्सरियती जीत अवाम की तरफ से एतमाद का वोट है। अब तक के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को तारीखी शिकस्त मिली है। अपने एक ट्वीट में शेरी रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर वोटर्स, पार्टी क़यादत, उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के नाम निहाद बयानिए को एक बार फिर
मुस्तरद कर दिया गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बयानिया नहीं, अवामी खिदमत में वक्त गुजारा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर आवाम का पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा हो या सैलाब, हम हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़े रहे। PPP की सियासत का मकसद आवाम की खिदमत है। आवाम और पीपल्स पार्टी के बीच एतमाद का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन पुरअमन रहे और इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में किसी किस्म की देर नहीं हुई। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ख्वाहिश है जो भी मेयर बने वो कराची की बेहतरी के लिए काम करे। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस दिया है। जब RTS पिछले दफ़े था तो 4 दिन बाद रिजल्ट आए थे और उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। इस दफ़े RTS नहीं था, सारी कंपाइलेशन मैनुअल हो रही थी। हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी, वो काम करेंगे तो हुकूमत सिंध का फ़ायदा है इसमें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी पूरी सपोर्ट होगी। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्ज पार्टी के तौर पर सामने आई है और कल के इलेक्शन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि साबिक़ इलेक्शन में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था। उन्होंने मजीद कहा कि मैं जमात इस्लामी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि अवाम ने उन पर एतमाद किया है। मजमूई तौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बल्दियाती इंतखाबात का मैदान जीता है। खन्नास PTI के दिमाग में था कि कराची उनका है, वो निकला। 2018 के इलेक्शन के जो नताइज थे, जिसको सब मानते हैं कि वो धांधली ज़दा थे, जाली थे, वो डाका पड़ा था कराची के लोगों के वोटों पर, वो कल के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने उसको दुरुस्त साबित किया है। ये जो एतमाद किया गया है, ये इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जिस अंदाज में पिछले कई बरसों से कराची के लोगों की खिदमत की है, कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश की है, कराची के लोगों ने उसको सराहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि इमरान खान ने पंजाब असम्बली तोड़कर पंजाब का मौशी इस्तेहसाल किया, जबकि KP असम्बली न तोड़कर इमरान खान ने अपनी करप्शन के लिए महफूज पनाहगाह रखी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे हसन मुर्तज़ा। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडों पर काम कर रहा है, कश्मीर का सौदा किया, पंजाब को अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने 4 साल के दौर में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, इदारों को कमज़ोर किया और इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इससे ये वाज़ेह हुआ है कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जो अवाम को रिलीफ फराहम करती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और कराची में पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें जीती और पहली बार हैदराबाद और कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। और अब न्यूज़ शो में कुछ बात करेंगे हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराए गए अराजी के नए कानून के तहत कश्मीरियों की अपनी ज़मीनों से जबरी बेदखली की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अपनी मुजरमाना खामोशी तर्क करते हुए मकबूजा इलाके में फैसलाए भारतीय हुकूमत के साम्राज्य इक़दाम का नोटिस ले। राजौरी में लोगों ने नए जालिमाना अराजी कानून और मोदी हुकूमत की दीगर अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जालिमाना अराजी के कानून की फौरी तौर पर मनसूखी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद मकबूजा इलाके में आबादियाती के तनासुब को तब्दील करने के लिए खाली कराई गई जमीन पर भारतीय हिंदुओं को आबाद करना है। भारत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू शहर के मरकज में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और उनके अहल खाना के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी कायम करने का मंसूबा बनाया है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद मोदी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाए गए नए डोमिसाइल कवानीन के तहत भारतीय फौजी एहलकारों और उनके अहल खाना को मकबूजा इलाके के डोमिसाइल जारी किए गए हैं। नाज़रीन, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद वज़ीर आला आदित्यनाथ की सरबराही में मुसलमान कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में 16वीं सदी की तामीर की गई तारीखी शाही मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में मकामी इंतजामिया के एहलकारों को बुलडोज़र की मदद से मस्जिद को शहीद करते हुए देखा जा सकता है।
हुकाम ने दावा किया है कि मस्जिद सड़क को चौड़ा करने में रुकावट बन रही थी, इसलिए शहीद किया गया। मस्जिद इंतजामिया और इलाके में रिहाइश पजीर मुसलमानों ने मस्जिद को शहीद होने से रोकने के लिए मकामी अदालत से रुजू कर रखा था, जहां केस की समाअत 2 दिन बाद होना थी। और अब बात करते हैं हम कौमी पोलियो मुहिम की। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है। ये रवां साल की पहली बाकायदा इंसदादे पोलियो मुहिम है। बिल्कुल, और कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 20 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमें आगाह कर रही हैं सदफ अफसल मलिक। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 42 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि मुहिम में 3,60,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। वजीर सेहत ने कहा कि हर बार हर मुहिम में कतरे पिलाने से कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है। इंसदादे पोलियो मुहिम पंजाब में भी शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 1,99,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स शरीक हैं। पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पोलियो वैक्सीन के पॉइंट्स बनाए गए हैं। पंजाब 2 बरसों से पोलियो पाक है, ताहम मस्बत माहौलियाती नमूने तशवीश का बाइस हैं। इसलिए वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। बलोचिस्तान भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 25,99,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 11,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 29 अजला में मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 62,54,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 11,000 से ज्यादा टीमें शामिल हैं और पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए 4,200 सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। तश्कील दी गई टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे लाजमी पिलवाएं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और इसी हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एमरजेंसी सेंटर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर हुकूमती अज़्म हमें नज़र आ रहा है कि इस मोहलिक और ये जो मूजी मरज़ है इससे निजात हासिल करके हम अपनी जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बना सकते हैं, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 महीने तक पोलियो का कोई केस ना होने के बाद हमारे बदकिस्मती से 4-5 माह में हमारे पाकिस्तान में 20 पोलियो के केसेस एक मखसूस इलाके में हुए थे, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में आ गई है और एनवायरमेंटल सैंपल और केसेस पिछले 3 माह से नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पर इस मुहिम का आगाज़ किया है और वज़ीर सेहत जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब भी ज़ाती तौर पर इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट टॉप क्लास है और जो हमारी पोलियो की लास्ट कैंपेन हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये कैंपेन भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ मैं इस एक बात और इसका इजाफा कर दूं कि इस कैंपेन में ना सिर्फ हम पोलियो के कतरे पिला रहे हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उनकी कुव्वत मदाफत बढ़ाने के लिए विटामिन ए के कतरे भी पिलाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है? हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे हैं, 4 करोड़ 20 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और बहुत सारे बच्चे जो घरों में मौजूद हैं फिर इसके साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है? कितने ऐसे कारकुन हैं जो पोलियो वर्कर्स हैं जिनकी खिदमात हासिल हैं और फिर जो हसास इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी हमारे तकरीबन 3,60,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर जो है वो घर घर जाकर ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे। इसके लिए हमारी घर घर जाने वाली टीमें भी हैं, इसके अलावा हमारी टीमें हैं जो मार्केट्स, प्ले स्टेशंस और रेलवे स्टेशंस और बस स्टॉप और इस तरह के जो मसरूफ जगह हैं जहाँ पे बच्चे हो सकते हैं वहाँ भी जाएंगी। और इसके अलावा हमने ट्रांजिट पॉइंट्स पे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी टीमें तैनात की हैं ताकि अगर कोई बच्चे मूव कर रहे हैं तो वो किसी तरह सफ़र के दौरान भी मिस ना हो। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए भी हमारे
पाकिस्तान आर्मी GHQ के साथ हमारा मुकम्मल तावन है और पुलिस के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिल के हमने वो भी तमाम अरेंजमेंट किए हुए हैं और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट होगी वहाँ पे हमारे पोलियो टीमों के साथ 2 से लेकर 8 तक एक पोलियो टीम के साथ पुलिस एहलकार भी उनकी हिफाजत के लिए उनका साथ देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम चीज़ जो यहाँ पर आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, हम देखते हैं कि कुछ ख़ास इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से रेजिस्टेंस सामने आती है, ज़ाहिर है गलत फहमियाँ हैं, गलत मालूमात हैं जो उन तक पहुँची हैं, जिसकी वजह से ये रद्दअमल सामने आता है। उनको एजुकेट करने के लिए आप क्या समझते हैं कितना अहम किरदार है मीडिया का? आप लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी मीडियम है किस तरह से लोगों तक दुरुस्त मालूमात की रसाई को मुमकिन बना सकते हैं ताकि वो इस गलत फहमी से निकलें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम सिर्फ यही समझेंगे कि पोलियो वर्कर घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे और ये पोलियो खत्म हो जाएगा, तो अगर ऐसा होना होता तो पिछले 20 साल में हो गया होता। हमें इसे एक अहम कौमी फरीजा समझ के हम सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मीडिया का अपना रोल है, पॉलिटिशियंस का अपना रोल है, जो इन्फ्लुएंशियल्स है उन इलाके में उनका अपना रोल है। सब जो है वो इस चीज़ को कन्विंस करें। जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बच्चे जो है वो रह जाते हैं इनकार करने वाले, वो तकरीबन 1% है। लिहाजा उनकी तादाद यानी कि अगर 4 करोड़ बच्चों को हम कतरे पिलाएंगे तो उसमें चंद लाख बच्चे होंगे जो रह जाएंगे और उन्हीं में वायरस बचता है। लिहाजा अगर कोई हमें ये मदद करता है उस घर को कन्विंस करने में, उनको बताने में कि ये बच्चे के लिए महफूज है, तो वो हमारी बहुत बड़ी हेल्प है। इसलिए मीडिया का भी रोल है कि ये वैक्सीन सेफ है, पाकिस्तान इसको इंपोर्ट करता है, हमारी निगरानी में ये सारा कुछ चेक भी होता है और हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। और यही वो वैक्सीन है जो बाकी दुनिया में भी इस्तेमाल हुई है और अफगानिस्तान में भी यही वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आसिफ, नेशनल कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। आप पोलियो मुहिम के आगाज़ पर बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से। और नाज़िया, एक नेगेटिविटी जब आ जाती है ना किसी हवाले से, लोगों में इबाम पैदा कर दिया जाता है और ये चंद शरपसंद अनासर की तरफ से किया जाता है कि इस वैक्सीनेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने पोलियो वैक्सीन के खतरे ना पिए हों। बचपन में, हमारे बचपन में भी ये पोलियो वैक्सीनेशन के खतरे होते थे और इसी तरह से पोलियो की कैंपेन्स आती थी, बच्चों को महफूज बनाया जाता था। ये सब के सब सक्सेस स्टोरीज हैं। और जो लोग मना कर देते हैं, फिर खुदा ना खास्ता बच्चा जो कि उम्र भर जिसने बड़े होकर वालिदैन का, अपने खानदान का सहारा बनना होता है, वो अपने लिए आर्जी सहारे तलाश कर रहा होता है। बिल्कुल जी, और इस काविश में हर फर्द ने अपना हिस्सा डालना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि पूरी दुनिया में यही वैक्सीन पिलाई जा रही है, पाकिस्तान में कोई हटकर अलग से वैक्सीन नहीं आई है। लिहाजा जो भी खदशात हैं, जो भी गलत फहमियाँ हैं, उनको साइड पर रख के ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ जो आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसने आगे चल के अपने पूरे ख़ानदान का बल्कि माशरे का भी एक बड़ा ही बाशऊर और मुफीद शहरी बनना है, वो नहीं हो सकेगा अगर उम्र भर की मौजूरी उसके साथ जो है वो लग जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। मामूलात ज़िंदगी ऐसे अंदाज में अंजाम देने के लिए हम जिस्मानी सेहत की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन इस सब के लिए ज़हनी सेहत ये भी इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ज़हनी सेहत है तो जिस्मानी सेहत है। और इस हवाले से मोहम्मद उस्मान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। देखने में एक शख्स सेहतमंद हो मगर इसके ख्यालात मुंतशिर, चेहरे पर एक नागवारी, चिड़चिड़ापन, खामोशी और नींद की कमी इसके ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल को वाज़े करती हैं। नफ्सियाती या ज़हनी बीमारी लाइलाज नहीं मगर इसका इलाज सब्र आज़मा और तवील हो सकता है। दिमागी सेहत और मेंटल हेल्थ जो है वो उसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोचते और ना ही ज़्यादा आगाही है उनको। बच्चों के सामने घर के मसाइल डिस्कस करना, पेचीदा मसाइल डिस्कस करना, वालिदैन को आपस में अपने मसाइल डिस्कस करना, आपस में लड़ना झगड़ना, कोई तरबियत ना करना, वो बहुत डैमेजिंग होता है। मगरबी ममालिक में बच्चे को हाथ लगाना, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है और इसके पीछे बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है जिसकी वजह से ये रोका जाता है। तो दिमागी या ज़हनी सेहत किसी भी फर्द के जज्बाती, नफ्सियाती और माशरती हालात की आकाश होती है। ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए तनाव जैसे मसाइल से निमटना जरूरी होता है। इसके लिए बच्चों की रोजमर्रा सरगर्मियों समेत इसे निसाब में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि हकीकी मानों में एक सेहतमंद माशरे की तश्कील मुमकिन हो सके। ज़हनी सेहत का आपको आजकल ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जो सोशो इकनॉमिक कंडीशंस है, जो स्ट्रेस है, ये आजकल बीमारियों में नंबर 1 फैक्टर समझ जाता है।
जैसे भी आपको कोई ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का सामना हो और फ़ौरन आप साइकियाट्रिस्ट से रजू करें, क्योंकि आपको अपनी ज़हन और नफ्सियाती सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए, बजा के आप लोगों के तरफ देखें और सोचें कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया भर में हर 100 में से 5% लोगों में ये मर्ज पाया जाता है। उसकी जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ है, मरीज़ जब वो सुबह उठते साथ ही वो खाली खाली महसूस होता है, उसको इंतहा दर्जे की मायूसी, नाउमीदी जैसी कैफियत का सामना करना पड़ता है। उठने को उसका दिल नहीं करता, किसी काम में मन नहीं लगता उसका, और सोचों और ख्यालात का एक झंगटा उसके हर वक्त दिमाग पे सवार रहता है। मस्बत रवैया, अच्छी नींद, जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहना और लोगों से खुशमिजाजी से पेश आना ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़हनी आसूदगी माशरे से नाउमीदी और मायूसी का खात्मा करती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जाए। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद कौमें ही तरक्की और खुशहाली की राह में गामजन हो सकती हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आला तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं और गुज़श्ता 3 साल के दौरान जामिया में दर्जनों नए शोबे कायम किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसील है, ये रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। दरसगाहें और तालीमी इदारे नौजवान नस्ल की ज़हनी आबियारी के साथ साथ कौमों की सूरत गरी का फरीज़ा भी सर इंजाम देते हैं। जो माशरे अपने तालीमी इदारों को तरक्की और दवाम बख्शते हैं, वही अक़वाम आलम का मुकाबला कर सकते हैं। इसी विजन के तहत बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी तरक्की के मनाजिल तेजी से तय कर रही है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की तादाद 13,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है, जबकि इसके 16 फैकल्टीज और 132 शोबाजात नौजवान नस्ल को नए चैलेंजेस के तकाज़ों से आहंग कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें 1207 नंबर था सन 2020 के अंदर, और अब 2023 की रैंकिंग में हम 800 नंबर पे आए हैं। हम जनूबी पंजाब की हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी बने। इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब वो रोल प्ले कर रही है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने रीजन की सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करना चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में PhD फैकल्टीज की तादाद भी 150 से बढ़कर 750 हो चुकी है। कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों से अफराद बहावलपुर में मुलाजमत को तरजीह दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाएँ। अगर स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ इंगेज कर दिया जाए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, और थ्योरी के साथ साथ वो हैंड्स ऑन स्किल सेट भी अपना डेवलप कर लें। तालीम को मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने और फारुकुल तहसील तलबा के लिए जॉब के हसूल के लिए यूनिवर्सिटी में खुसूसी सेंटर भी कायम किया गया है, जिससे तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो रहे हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बहुत सारे ऐसे शोबाजात इस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और तामीर किए गए हैं जहां पर तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे हम मौसम की, और ठठरती सर्दियां और शदीद सर्दी जो है उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि आइंदा 12 घंटे के दौरान भी महकमे मौसमियात का ये कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश रहेगा, जबकि बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। और इस शदीद सर्दी के साथ साथ महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं भी चलेंगी। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द भी था और खुश्क भी। बलूचिस्तान का रुख करें तो इन दिनों बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लहर के ज़ेर असर है। नदी नालों और पानी की सप्लाई लाइंस में पानी इस वक्त जम चुका है और मौसम की शिद्दत का अंदाज़ा है अब तो आपने लगा ही लिया है, लेकिन ख़बर यह है कि ये शिद्दत मज़ीद कुछ रोज़ बरकरार रहेगी। मज़ीद अहवाल क्या है ये जानेंगे कोयटा से वक़ार अहमद की इस रिपोर्ट में। न ये फर्श है और न ही कंस्ट्रक्शन साइट, ये तो मस्तून का गंजाडोरी तालाब है जिसे -10 डिग्री पर बच्चों ने आइस हॉकी की तरह फुटबॉल ग्राउंड बना दिया है। बलूचिस्तान में बर्फानी कंधारी हवाओं का डेरा है। बरसाती नाले और तालाब यखबस्ता हवाएं चलने से जमकर पुख्ता फर्श बन गए हैं। मौसम की शिद्दत से जैसे लोग घरों में महसूर से होकर रह गए हैं। ज़ियारत और कलात -9, मस्तूंग -8, नुकुंडी -7, कोयटा, चमन और दालमदीन -6, पशीन -5 और गर्मी में 50 डिग्री जाने वाले और खजूर की पैदावार से मशहूर पंजगूर भी -4, जबकि खारान और लोरालाई में भी मरकरी -3 डिग्री सेल्सियस तक है। मेट ऑफिस का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक भी योब और नसीराबाद डिवीजन, सारवान, झालवान, मकरान, रखशान और कोस्टल बेल्ट में मौसम बेहद सर्द ही रहेगा। चागी, नोशकी, कोयटा, किला अब्दुल्ला और अतराफ में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
اور ویسے تو پورا پاکستان ہی بہت خوبصورت ہے اور سردی کے موسم میں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان خاص طور پر ایک الگ ہی روپ دھار لیتا ہے. ہر طرف ہمیں سفید چادر نظر آتی ہے. بالکل جی, اور برف باری کے بعد وہاں پر بھی سردی کی شدت جو ہے اس میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے. اور سردی کی شدت کی اگر بات کریں تو آج اسکردو شہر میں کم سے کم دن کا جو درجہ حرارت تھا وہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا. اور جو برف پڑنے والے بالائی علاقے ہیں آج وہاں پر درجہ حرارت -12 ڈگری تک گر چکا ہے, جس سے لوگوں کے لیے یقینی طور پہ جو ان کی معمول کی سرگرمیاں ہیں وہ کافی حد تک معطل ہو چکی ہیں. موسم کی صورتحال بھی آپ جان چکے ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 سے فی الوقت اتنا ہی. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا شکریہ. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے گا.